Hello all, welcome to the Infinity Academy. In this video, we are going to discuss the strength of material questions which are given in the RTO AMVA mains in the year 2017. All of you know AMVA, that is Assistant Motor Vehicle Inspector, and this is the diploma level exam. So here in this video, we are going to discuss the question which are given in the year 2017. And subsequently in the next video we will discuss the questions given in the year 2013. अभी ये जो 2017 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूरा 15 क्वेश्चंस आया था, हम सब 15 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हम. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ shearing stress distribution across a rectangular cross sectional beam. Okay, so they are saying, वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर सेक्शन है. तो अभी ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में shear stress distribution कैसा होता है, shear stress distribution कैसे होता है. तो if you remember, the formula to determine the shear stress is Q equal to FAY by IB. Okay, this is the formula to calculate the shear stress at any section, where AY is the first moment of area, where AY is the first moment of area. So अभी ये केस में जो भी वेरिएशन है shear stress का वो पैराबोलिक रहता है. Okay, at the neutral axis it will be maximum, at the central axis it will be maximum, and at the extreme fibers it will be zero. At the extreme fibers how much it will be? Zero. So for this question answer होता है कि पैराबोलिक होता है. और यही क्वेश्चन अगर हमको बेंडिंग स्ट्रेस को पूछा तो, वही क्वेश्चन हमको बेंडिंग स्ट्रेस को पूछा तो हमारा आंसर होता है कि लीनियर वेरिएशन होता है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन आपको याद है तो दिस विल बी द बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन. Okay, so for shear stress parabolic is the variation, for bending stress linear is the variation. Okay, so that's the answer. ठीक है, next question हम देखते हैं. Next question is angle between major principal plane and minor principal plane for strained body is. अभी ऐसे हमारे पास एक बॉडी है which is subjected to stresses, और इसमें stresses ऐसे है कि two mutual perpendicular stresses है suppose. Okay, two mutual perpendicular normal stresses है. तो ये केस में अगर ये जो भी स्ट्रेस है वो 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर है सोचो, और ये जो भी स्ट्रेस है ये प्लेन में 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है सोचो. अभी ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है हमको, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है. ओके, if a body is subjected to two mutually perpendicular stresses, the same stresses will become the major principal stress and minor principal stress. So now abhi this is the major principal plane and this is the minor principal plane. Okay, this is the minor principal plane, this is the minor and this is the major principal plane. अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि what is the angle between major principal plane and minor principal plane. आंसर कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है. सिर्फ ये केस में नहीं है, जो भी केस है वो यहाँ पे एक shear stress लगा हुआ आप लोग. ओके, फिर भी वो एंगल कितना होता है कि 90 डिग्रीज होता है. द एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच इज 90 डिग्रीज. ओके, दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर सर्किल ऑफ रेडियस आर about the axis passing through the centroid is. About the axis passing through the centroid is. अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमको, एक क्वार्टर सर्किल है और उसका रेडियस दिया है कि r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. तो ये केस में हमको कंप्लीट सर्किल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई r पावर 4/4 होता है. वही सेमी सर्किल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई r पावर 4/8 होता है. वही क्वार्टर सर्किल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि पाई r पावर 4/16. तो अभी हमको क्या पूछ रहे हैं कि क्वार्टर सर्किल का पूछ रहे हैं, विच इज पाई r
r⁴/16, लेकिन हमको आंसर में वो दिख नहीं रहे, तो इसलिए हमको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है, π/16 का वैल्यू निकालना है हम, ओके, π/16 का वैल्यू निकालना है। सबको पता है π/16 का वैल्यू कितना होता है कि वो 3.14/16 r⁴। अभी आप लोग 3.14 को कैलकुलेशन किया तो आपको आएगा कि 3.14/16 को कैलकुलेट किया तो आपको आएगा कि 0.19 r⁴। लेकिन ये जो आंसर आ रहे हैं हमको वो ऑप्शंस में नहीं है, तो इसकी वजह से ये केस में आंसर क्या होता है कि नन ऑफ दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। सो कंप्लीट सर्किल का केस में πr⁴/4 होता है, और सेमी सर्किल का केस में πr⁴/8 होता है, और क्वार्टर सर्किल का केस में πr⁴/16 होता है। सो π/16 refers to 0.19 r⁴, वो आंसर में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of largest load in a test to the original cross section area of the test piece is, okay, the ratio of largest load in a test to the cross sectional area of the test piece is। अभी देखिए हमको ये यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है, ओके। सपोज इफ यू कंसीडर द केस ऑफ माइल्ड स्टील, अभी हम माइल्ड स्टील का केस कंसीडर करते हैं। माइल्ड स्टील का केस में क्या होता है कि हमको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे आएगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन अभी ये पोर्शन हमको इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वही पोर्शन दिखा रहा है मैं। तो यहाँ पे लोड मैक्सिमम लेते, ये पॉइंट पे लोड मैक्सिमम लेते, और ये पॉइंट को हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं कि दिस पॉइंट वी कॉल एज अल्टीमेट स्ट्रेस। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस। जहां पे ज्यादा लोड लेते हैं, जहां पे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस। और यहाँ पे ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जब भी स्पेसिमन ब्रेक होता है तब जितना स्ट्रेस लेता है उसको हम बोलते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस। और यहाँ पे हमको यील्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमको यील्डिंग स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन माइल्ड स्टील का केस में अपर यील्डिंग पॉइंट कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ लोअर यील्डिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि यील्ड स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं कि यील्ड स्ट्रेस। एंड समवेयर हियर यू विल बी हैविंग योर इलास्टिक लिमिट, समवेयर हियर यू विल बी हैविंग योर इलास्टिक लिमिट। सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, and the point is whatever the load you will get the largest load, I mean at whatever the largest load you will get the stress, that stress is called as ultimate stress, that stress is called as ultimate stress, you can see here, okay, that's the point. Next one, moment of inertia of hollow rectangular section having outer depth capital D and breadth capital B, okay, hollow rectangular section बोल रहे हैं, हेलो बोले तो हमको ऐसे दिखेगा सेक्शन। तो इसका डायमेंशन दिया है, अभी क्वेश्चन में डायमेंशन दिया है। डायमेंशंस क्या दिया है? हैविंग आउटर डेप्थ कैपिटल डी, आउटर डेप्थ कैपिटल डी एंड इनर डेप्थ कितना है, सॉरी आउटर डेप्थ कैपिटल डी एंड विड्थ कितना है, कैपिटल बी है, आउटर ब्रेड्थ कितना है, कैपिटल बी है। और जो भी इनर डायमेंशन है वो दिया कि स्मॉल डी और स्मॉल बी दिया है। तो ये केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं हमको, एक केस में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है कि अभी हमको एक्चुअली ये केस में कितना होता है कि BD क्यूब बाई 12 होता है। मीन्स जो भी ये आउटर पोर्शन है, जो भी एक कंप्लीट रेक्टेंगल कंसीडर किया, तो मैं अभी क्या करना है कि पहले इसको कंप्लीट रेक्टेंगल जैसे कंसीडर करना है, तो इसका होता है कि BD क्यूब बाई 12, और जो भी हैलो पोर्शन है उसको निकालना पड़ता है, और हैलो पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, BD क्यूब बाई 12 होता है। मीन हैलो पोर्शन में कुछ नहीं है हमको, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो ये हैलो सेक्शन जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करते हैं उतना हम रिमूव करना है, तो वो कितना होता है कि माइनस BD क्यूब बाई 12 होता है। सो यू कैन राइट इट एज कैपिटल BD क्यूब माइनस BD क्यूब बाई 12। तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, C इज द आंसर, ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन ए बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के बारे पूछ रहे हैं यहाँ पे। अभी सपोज हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को कंसीडर किया, तो
tau max divided by tau average, tau max divided by tau average. So रेक्टेंगुलर का केस में tau max divided by tau average कितना होता है? 1.5 होता है। वही हम सर्कुलर सेक्शन का केस कंसीडर किया तो हमको होता है, आंसर होता है कि 4/3। 4/3 कितना होता है? 1.33 है, इजी कैलकुलेशन है। 4/3 1.33 होता है, तो 1.33 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, shear modulus and bulk modulus is given by, it is a straight question which is from the simple stress and strain, very important concept it is। बहुत सारे एग्जाम में यही टॉपिक पे क्वेश्चंस आता, सीधा मींस यही फार्मूला से क्वेश्चंस आएगा, तो याद रखना सब फार्मूलास आप लोग। तो ये केस में फार्मूला क्या होता है? E = 9 kg/3k + g, दिस इज द फार्मूला। इसके साथ और दो रिलेशंस है हमको याद करने की। E और G का रिलेशन वो क्या होता है कि E = 2G × 1 + 1/m, वेयर 1/m इज द पॉइजन्स रेशियो। और इसके साथ हमको बल्क मॉडुलस से भी रिलेशन है, E = 3k × 1 - 2/m। तो ये सब रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, हमको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन सिलेंडर शेल ऑफ लेंथ L, diameter D and thickness T subjected to internal pressure P, what is the change in length if it is made up of material having modulus of elasticity E and Poisson's ratio mu? तो ये केस में ऑप्शन ये दिया है कि डेल्टा L = PdL/2T × 1/2 - mu। ऑप्शन बी दिया है कि डेल्टा L = PdL/2T × 1 - mu। ऑप्शन सी दिया कि डेल्टा L = PdL/2T × 1 - 2 mu। और ऑप्शन डी दिया कि नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर हमको क्या होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ए बी, PdL/2T × 1/2 - mu। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐड करना पड़ता है हमको। ओके, सो दिस इज द आंसर। और इसके साथ वॉल्यूम का भी फॉर्मूला रहता है, चेंज इन वॉल्यूम का भी फॉर्मूला रहता है, वो भी याद रखना होता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a beam has triangular cross section having base B and altitude h. If the section of the beam is subjected to shear force F, the shear stress at the level of neutral axis in the cross section is given by, shear stress at the level of neutral axis in the cross section is given by। अभी बोलिए, ये हमको है कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन, इसमें हमको न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे रहता है? न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे रहता है? न्यूट्रल एक्सिस विल बी देयर एट द हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे रहता है? h/3 फ्रॉम द बेस रहता है। तो ये केस में न्यूट्रल एक्सिस के पास शियर स्ट्रेस कितना होता है कि 8F/3BH होता है, 8F/3BH होता है। और सपोज h/2 का हाइट है, मीन्स h/2 हाइट है, ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, लेकिन h/2 हाइट में मैक्सिमम होता है। h/2 हाइट में क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ मैक्सिमम होता है। ओके, बाकी केस में कैसे कि न्यूट्रल एक्सिस के पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, लेकिन ये केस में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं होता है न्यूट्रल एक्सिस के पास। इट विल बिकम मैक्सिमम एट द हाइट ऑफ h/2। सो व्हाट विल बी दिस? टाउ मैक्स इज 9F/3BH which is equal to 3F/BH, which is equal to 3F/BH। लेकिन अभी ये ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस दिया है, हमको क्या आंसर होता है? 8F/3BH होता है, क्योंकि हमको कहाँ पे पूछ रहे हैं? न्यूट्रल एक्सिस के पास पूछ रहे हैं, h/3 के पास, नॉट एट द हाइट ऑफ h/2। तो h/2 के बार होता है कि 3F/BH, दैट इज 9F/3BH, और न्यूट्रल एक्सिस के पास होता है कि 8F/3BH। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो इन द ट्रायंगुलर सेक्शन फॉर द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज। तो अभी एक सेक्शन है हमारे पास, वो रेक्टेंगल होगा, सर्कुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा, व्हाटएवर इट इज। अभी ये सेक्शन में हमको न्यूट्रल एक्सिस है, ये सेक्शन में हमको क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस के पास बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है? आपको पता होगा बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन ऐसे रहता है, हमको यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होगा, और उल्टा भी हो सकता है वो।
लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के पास कभी भी बेंडिंग स्ट्रेसेस कितना होता है कि 0 होता है। न्यूट्रल एक्सिस के पास बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है 0। सो एट दिस पॉइंट बेंडिंग स्ट्रेसेस आर 0, सो आंसर विल बी 0। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, a steel plate is bent into a circular arc of radius 10 meters. If the plate section be 120 mm wide and 20 mm thick, the maximum stress induced will be, the maximum stress induced will be। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट ऐसे आर्क जैसे बेंड हो रहा है, एक स्टील प्लेट है वो आर्क जैसे बेंड हो रहा है, तो बेंड हुआ तो उसमें कौन सा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है। उसमें कौन सा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होता है। अभी बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुआ तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है बेंडिंग स्ट्रेसेस को। आपको एक इक्वेशन पता है कि F by y इक्वल टू E by R। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है कि F by y इक्वल टू E by R होता है। अभी ये केस में हमको F निकालना है, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है विच विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेसेस, क्योंकि जो भी प्लेट है दैट इज सब्जेक्टिंग टू द बेंडिंग, सो ओनली बेंडिंग स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड। और हमको y वैल्यू पता है, y वैल्यू कितना होता है। ऐसे डेटा देखिए आप लोग, प्लेट सेक्शन का डायमेंशंस दिया है कि 120 mm वाइड, 120 mm वाइड, और जो भी डेप्थ दिया है कि वो 20 mm दिया है। ओके, डेप्थ कितना दिया है 20 mm दिया है। अभी डेप्थ 20 mm दिया तो y वैल्यू कितना होता है, डेप्थ 20 mm दिया तो y वैल्यू कितना होता है, y इक्वल टू d/2 विच इज इक्वल टू 10 mm। तो अभी y वैल्यू हमको पता चला कि 10 mm, तो F by 10 mm, और ये वैल्यू भी दिया है 2 × 10⁵, क्योंकि स्टील प्लेट है तो कभी भी यही वैल्यू होता है इलास्टिक मॉडुलस का, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और R वैल्यू दिया है यहाँ पे, रेडियस इज 10 मीटर, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर, तो बेंड किया तो उसका रेडियस कितना हो रहा है 10 मीटर्स हो रहा है। 10 मीटर्स को अभी mm में कन्वर्ट कीजिए आप, कितना होता है 10,000 होता है, कितना होता है 10,000 होता है। सो अभी यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशंस किया तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 1 जार 10,000 जार होता है। सो 2 × 10⁵ दैट इज 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1000, वो कितना होता है कि 200 होता है, तो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द आंसर। तो आंसर इज हाउ मच, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर, इजी फार्मूला, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चलना है कि कैसे फार्मूला यूज करना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे बेंडिंग स्ट्रेस, सिर्फ बोल रहे कि मैक्सिमम स्ट्रेस, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया कि स्टील प्लेट इज बेंट, स्टील प्लेट इज बेंट, इसीलिए हमको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस कंसिडरेबली एज कंपेयर्ड टू द इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड एज। ओके, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि अभी आपको ऐसे एक पॉइंट के बाद कंटिन्यूस एक्सटेंशन होता है, एक पॉइंट के बाद कंटिन्यूस एक्सटेंशन होता है, तो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ओके, अभी ये पॉइंट के बाद क्या होता है कि आप लोग सेम स्ट्रेस अप्लाई किया तो भी स्ट्रेस ज्यादा होता है, सेम स्ट्रेस अप्लाई किया तो भी स्ट्रेन इंक्रीज होता है। तो अभी आप डिफॉर्मेशन देखो तो सपोज ये डिफॉर्मेशन है, ये लोड है। ओके, सो लोड को मैं कांस्टेंट रखा, फिर भी जो भी डिफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, और ये जोन को हम बोलते हैं कि यील्डिंग जोन बोलते हैं, और जहां पे हमको ये यील्डिंग स्टार्ट होता इसको हम बोलते हैं कि यील्डिंग पॉइंट। तो यील्डिंग पॉइंट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम होता है इसको हम बोलते हैं कि अल्टीमेट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं कि अल्टीमेट पॉइंट। और जहां पे स्पेसिमन ब्रेक होता है, जहां पे स्पेसिमन ब्रेक होता है और फेल होता है, इसको हम बोलते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट। सो हियर समवेयर इट विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, ऐसे होता है। ठीक है, सो आंसर इज द यील्डिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of critical load of columns of same dimensions and same material। critical load पूछ रहे कॉलम का, ऐसे बोल रहे कि सेम डायमेंशंस एंड सेम मटेरियल, सेम डायमेंशंस एंड सेम मटेरियल बोला तो ई वैल्यू सेम रहता है, आई वैल्यू भी सेम रहता है। ओके, ई वैल्यू एंड आई वैल्यू आर सेम इन बोथ द केसेस। अभी केस 1 में बोल रहे हैं वन इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड अदर इज फिक्स्ड एट वन एंड हिंज्ड एट अनदर एंड।
अभी फर्स्ट केस में हम देखते हैं, केस 1 देखते हैं हम, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, कॉलम है ना, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। तो दोनों एंड पे फिक्स किया तो हमको क्रिटिकल लोड कितना होता है कि पाई स्क्वायर EI बाई 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर होता है। और वही केस में सपोज एक एंड में ऐसे फिक्स्ड है और एक एंड में ऐसे हमको हिंज्ड है, एक एंड में ऐसे हिंज्ड है हमको, तो ये केस में क्रिटिकल लोड कितना होता है कि 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर होता है, 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर होता है। वही हमको दोनों एंड मीन्स एक एंड पे फिक्स्ड है, एक एंड पे फ्री एंड है, वो केस में कितना होता है, पाई स्क्वायर EI बाई 4L स्क्वायर होता है। दोनों एंड्स पे हिंज्ड है तो वो केस में कितना होता है, पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर होता है। तो अभी ये केस हम कंसीडर किया तो केस 1 और केस 2 का रेशियो पूछ रहे हैं हमको, तो केस 1 बाई केस 2 कितना होता है क्रिटिकल लोड का, केस 1 बाई केस 2 क्रिटिकल लोड का कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर EI बाई L स्क्वायर। तो आंसर कितना होता है, 2 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shear stress distribution over a beam cross section is shown in the figure. The beam is of equal flange I section, unequal flange I section, circular cross section or T section, circular cross section or T section। अभी सपोज हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखा तो, ओके, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखा तो जो भी shear stress है वो कैसे वेरी होता है कि that will be in the same manner like rectangular section। अगर वही हम ऐसे T सेक्शन में, T सेक्शन का केस में देखा तो in case of T section shear stress distribution will be like this। T section shear stress distribution will be like, यहाँ पे आपको पता है 0 होता है हमेशा, और यहाँ पे क्या होता है कि विड्थ एकदम कम हो रहा है। विड्थ कम हुआ तो आपको पता है shear stress का फॉर्मूला Q इक्वल टू FAY बाई IB। विड्थ सडनली चेंज हुआ तो shear stress भी सडनली चेंज होता है। यहाँ पे विड्थ कम हो रहा है तो shear stress क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये केस में हमको ऐसे इंक्रीज होता है एकदम, फिर यहाँ से shear stress जो भी वेरिएशन है वो ऐसे आएगा। ओके, सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ द T सेक्शन। अभी वही हम I सेक्शन में देखा तो, I सेक्शन में इक्वल फ्लेंजेस है हमारे पास। I सेक्शन में इक्वल फ्लेंजेस है। I सेक्शन में इक्वल फ्लेंजेस। अभी इक्वल फ्लेंजेस है तो ये केस में क्या होता है कि वेरिएशन जो भी है यार न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, और दिस विल बी द वेरिएशन इन केस ऑफ द I सेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल फ्लेंजेस है, यहाँ पे इक्वल फ्लेंजेस है। अभी वही अनइक्वल फ्लेंजेस है तो देन यू विल गेट द shear stress distribution like this। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या होता है कि फ्लेंज का विड्थ अलग हुआ तो, फ्लेंज का डायमेंशन अलग हुआ तो ये सिमेट्रिकल नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द अनइक्वल फ्लेंज I सेक्शन। सो 15th क्वेश्चन, द shear force diagram for a simply supported beam carrying a uniformly distributed load of W per unit length consists of। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम में कौन सा लोड अप्लाई किया है, UDL अप्लाई किया है। UDL अप्लाई किया तो आपको पता है shear force diagram कैसे आएगा। So once if you apply your UDL, पहले हमको ये जो भी रिएक्शंस है वो कितना होता है कि WL/2 होता है। तो हमको यहाँ पे ऐसे एक फोर्स आएगा, एक रिएक्शन आएगा, WL/2 होता है वो, और यहाँ से यहाँ तक जो भी shear फोर्स है वो डिक्रीज होता है क्योंकि लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ये डिक्रीज होता है, तो यहाँ तक डिक्रीज ही होता है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो भी है वो कितना होता है कि WL/2 होता है। कैसे WL/2 होता है, यहाँ पे WL/2 है रिएक्शन, और इन बिटवीन लोड कितना है
WL है, सो WL/2 माइनस WL वो कितना होता है कि माइनस WL/2 होता है। और यहाँ पे फिर से एक रिएक्शन है, इसकी वजह से हमको शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे आता है। तो अभी ये केस में आपको क्या दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं और दो जो भी ट्रायंगल्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, तो आंसर क्या होता है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स होता है। ओके, सो दैट इज द आंसर। सो दीज आर द 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चंस RTO AMVI मेंस 2017 में दिया है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि 2013 का क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। थैंक यू सो मच।